প্রথম তো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানানো যে আপনারা আপনাদের মতন করে আমাদের প্রার্থীর সম্বন্ধে যথাযথ আমাদের প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আপনাদের কাছে আমরা তার জন্যে সুনিশ্চিতভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রার্থী গত 4 তারিখে সন্ধ্যেবেলায় ফলাফল বেরোনোর পর থেকে উনি তৎপর হয়ে উঠেছেন কিভাবে এই বিশাল লোকসভা কেন্দ্রে উনি সক্রিয়ভাবে ওনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং পূর্ব বর্ধমানের 5টি জায়গায় 5টি যে বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে তার নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের এখানে দুর্গাপুরে কি করা যায়, কালকে সন্ধ্যেবেলায় আমাদের এখানে আমাদের সহকর্মীরা যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে, বিশেষ করে এই পূর্বের তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাদের কি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা একজন লোকসভার সদস্য হিসেবে এখানে তিনি নিয়ে মানুষের কথা তুলে ধরতে পারেন সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফলাফলের বিশ্লেষণ করে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে সেই নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আর দুর্গাপুরের বিশেষ করে যে সমস্যা উনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, অর্থাৎ কিনা এখানে অনেক পুরনো বাসিন্দারা শিল্পের প্রসারের নাম করে বা সেই কারণ দর্শিয়ে তাদের উৎখাত করা হচ্ছে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে। ইতিমধ্যে অনেকের জল এবং আলোর সংযোগও কেটে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে উনি প্রচারের সময় খুব সোচ্চার হয়েছিলেন এবং ফলাফল বেরোনোর পরের দিনই উনি এই নিয়ে নথি সংগ্রহ করে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারও যে আছে, দেশের আইনের যে রিহ্যাবিলিটেশনের কথা লেখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশনামা আছে সেই কথা উল্লেখ করে উনি একদিকে যেমন আনন্দ প্রকাশ করেছেন ডিভিসির যে পাওয়ার সেক্টর, সেই পাওয়ার সেক্টর 400 মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি থেকে বাড়িয়ে 800 মেগাওয়াটের ক্যাপাসিটি করা হবে, সেই ব্যাপারে উনি কর্পোরেশনেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে উনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যারা বহুদিনের বসবাস করছেন তাদের বর্তমান যে প্রজেক্ট আছে, যে পাওয়ার যে শিল্প রয়েছে, সেই পাওয়ার উৎপাদনকারী ব্যবস্থার আশেপাশে থেকে মানুষদের হঠাৎ উচ্ছেদ করা, বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে এর বিরুদ্ধে উনি মানবিক কারণে আবেদন করেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আইন এবং বিশেষ করে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিভিন্ন রুলিং, যেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা যৌথভাবে তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে কোনো পুরনো বাসিন্দাদের যে কোনো কারণেই এইভাবে স্থানচ্যুত বা উচ্ছেদ করা যাবে না। অতএব একদিকে আবেদন আর একদিকে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই অসহায় মানুষদের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন। তার চিঠির রেজিস্টার্ড মেলে পাঠানো হয়েছে এবং এর পরবর্তীকালে অবশ্যই বুঝতে পারছেন তিনি এই নিয়ে যা করণীয় করবেন। তো এই ব্যাপারে আমার মনে হলো আপনাদের সকলের অবগতির জন্যে একজন নবনির্বাচিত সাংসদ, এখনো অভিনন্দনের পালা শেষ হয়নি, আপনাদের সামনেও অনেকে আসছেন, আমরা তাদের অনুরোধ করেছি কাজ আগে, অভিনন্দন বা উচ্ছ্বাস পরে। তো আমার মনে হলো দুর্গাপুরবাসীর আপনাদের মাধ্যমে সারা রাজ্যের মানুষেরও এটা জানা দরকার যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী যখন জয়যুক্ত হন তখন তার কর্তব্য সম্বন্ধে দলের নেত্রীর নির্দেশ মতন
সকলেই কত তৎপরতার সঙ্গে সচেতনভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। এই জন্যেই আপনাদের আজকে এখানে মিলিত হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি আপনাদের কাছে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে আপনারা সকলে এসছেন। সেই অনুরোধ রেখে আমি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এবং এছাড়াও আমাদের মাননীয় সাংসদ, নবনির্বাচিত সাংসদ, ताकि निश्चय। नमस्कार, आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव एक बहुत अच्छा चुनाव रहा। हम धन्यवाद करेंगे वर्धमान और दुर्गापुर के सभी वासियों का जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया। हमारे पूरे संगठन तृणमूल कांग्रेस का, हमारे वो कर्मी जो देहात वार्ड में हैं, जिनको भी हम लोग नहीं भी जानते हैं, उन सबों का विशेष रूप से धन्यवाद है जो लोग दिन रात मेहनत की। हम जब से आए हमको 3 दिन हो गया जीतने के बाद में, और हम बड़ा छटपटा रहे थे क्योंकि हम घर पर बैठने वाला आदमी नहीं है। और जो चिट्ठी आपके सामने हम रखेंगे और जो आदरणीय प्रदीप दा ने बताया है आपको, यह इस विषय पर हमको काफ़ी अनुभव है। क्योंकि दिल्ली में जब हम विधायक थे तो एशियन गेम्स हुआ था 1982 में दिल्ली में, और उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बना था, स्टेडियम बना था, रहने के लिए घर, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने थे, और उसमें लोग बाहर से आए थे जिन्होंने ये सब बनाया था, और उसके बाद वहीं पर बस गए थे, रह गए थे, घर बना लिया था, डेरा बना लिया था। उन लोगों को जब हम एमएलए बने 93 में, 93 में, तो उसके बाद लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। जो गोल मार्केट एरिया था वो नई दिल्ली क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, एमपी लोग, जितने लोग हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और सरकारी जमीन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले का आदेश है। हमारे संविधान में भी काफ़ी पहले रिहैबिलिटेशन का इस विषय पर दिया गया। और जब हम यहाँ पर आए थे तो हमसे बताया गया था कि केंद्र सरकार के ऐसे बहुत सारे परियोजना हैं जिसमें कि लोग 50 साल, 60 साल पुराने तक लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। कि जिस समय दुर्गापुर स्टील प्लांट शुरू हुआ था 60 साल पहले, सबसे पहला प्लांट था, तब से लोग बसे हुए हैं। और बार बार यह सुनने को आता है कि उनको हटा दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, नोटिस भेजा जाता है, बिजली काट दिया जाता है, पानी काट दिया जाता है। ये उचित नहीं है। जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है और देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेश हैं, हमारा हाई कोर्ट, देश भर के जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां पर लगभग सभी हाई कोर्ट में अनेकों ऐसे आदेश हैं जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग भी ऐसी सरकारी जगहों पर बसे हुए हैं, आप उनको उजाड़ नहीं सकते। यदि आप उनको हटाना चाहते हैं तो आपको एक वैकल्पिक स्थान, ऑल्टरनेट जगह उनको देना होगा, वहां आपको घर बनाना होगा, वहां पर बिजली पानी की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही आप लोगों को उजाड़ सकते हैं। क्योंकि हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि जिन लोगों ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन को खड़ा किया या अन्य सरकारी या प्राइवेट जगहों को खड़ा किया, जिन लोगों ने खून पसीना एक किया, मेहनत किया, वो लोग 10-12 साल तक रहे, तब तक तो आपको चिंता नहीं रही। लेकिन आपको जब अपना कमाने का हुआ तो आपने उनको उजाड़ना शुरू किया, तो ये उचित नहीं है। तो हमने एक चिट्ठी लिखी है, उसकी प्रतिलिपि कॉपी आप सबको आने वाला है। ये हमारी ऑफिस कॉपी है, ये आपको जेरॉक्स करने के लिए दिया है, दे देंगे वो आपको दे देंगे हम कॉपी। ये हमने साइन किया हुआ है और ये चिट्ठी हमने भेजा है, वो जा चुका है। ये कॉपी है इसलिए इसमें आपको सिग्नेचर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये हमने उसको भेजा है और यह आपके सामने है। उसके साथ में एक प्रतिलिपि और एक प्रेस का दादा की तरफ से एक प्रेस ब्रीफ है, क्योंकि चिट्ठी तो हमने लिखा था लेकिन दादा ने प्रेस मीट ये बुलाया है। दादा का बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया। साथ में हमारे सुभाष मंडल जी हैं जो हमारे कृष्ण की तरह थे, हमारे पूरे चुनाव में सब जगह हम जहाँ जा रहे थे उन्होंने कृष्ण की भूमिका, एक अर्जुन को जो मिलना चाहिए क्योंकि मेरे लिए नया था, उन्होंने किया। साथ में हमारे देबू हैं जिन्होंने कि सारा इसमें ड्राफ्टिंग में हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, देबू साईं, उन्होंने किया है। तो आपके सामने है। और यह एक बार हमने शुरू में कहा था जब आप लोगों से बात हुई थी और आप लोगों ने ये बात हमारे सामने रखा था
हमने ये कहा था कि माँ काली की कृपा होगी, ममता दीदी का आशीर्वाद रहेगा, हम यहाँ पर जीतेंगे। तो मेरा काम सबसे पहले दुर्गापुर में यही होगा कि यह गरीब लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो किसी तरीके से भी उजाड़े नहीं जाएं। हम चाहते हैं कि डीवीसी बढ़े, दिन दुगनी और रात चौगनी काम करे, उससे हमारे जो यहाँ नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी, यहाँ पर बिजली का उत्पाद बढ़ेगा जो हमारे दुर्गापुर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक मेरी जानकारी, डीवीसी के पास इतना जमीन है कि वो 400 का 800 बिना इनका जमीन लिए हुए कर सकता है। नहीं करेगा तो आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे। इसलिए हमारा उनसे केवल एक बात है कहना कि कृपया कोर्ट के आदेश का अवमानना मत कीजिएगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और यदि आपने किया तो फिर विवश होकर हमको कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन लोगों को अच्छे से कोई जगह दे करके स्थापित कर दीजिए, एक कोई जगह चिन्हित कर लीजिए। सरकार से आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऐसी जगह के लिए बात करेंगे कि आपको वो जगह मिले और आप वहां पर इनको घर बनाकर बसाकर दे दें, वहां बिजली पानी की व्यवस्था वापस लगाएं जब तक कि आप इनको हटाते नहीं, क्योंकि यह इनका मौलिक अधिकार है। बिजली और पानी फंडामेंटल राइट है। तो इतनी ही बात करनी थी, तो हमने अपना काम शुरू किया है और बड़े जोश के साथ किया है। आप लोग का इसमें साथ रहेगा। आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के और आप लोग का धन्यवाद है। हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक, हमारे कर्मी भी जो उधर के हैं वह भी जाएंगे ये चिट्ठी लेकर के, उनको बताएंगे कि हम लोग अपने कार्य पर लग गए हैं। जो तृणमूल ने वादा किया वो तृणमूल वादा पूरा करती है। अगर दीदी के सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको स्थान नहीं मिलेगा, तो दीदी का और दीदी की सरकार के एक एक शब्द का हम लोग अनुपालन करेंगे। और उस प्रकार से हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी भाई बहन, बेटी, माँ, चाचा, काकू जितने भी हैं, उन सबों के लिए तृणमूल लड़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारी लड़ाई गरीब के लिए, वंचित के लिए, उन सबों के लिए चलती रहेगी जो दीदी अपनी तरफ से कर रही हैं। हमको केंद्र सरकार से जब भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे, लेकिन लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं रहने देंगे। यह तृणमूल का वादा है। यह तृणमूल का एक कर्मी जो सांसद बना है उसका वादा है। एक हमारे प्रदीप दा जो मंत्री हैं हमारे सरकार में, उनका वादा है। हमारे साथ मेरे सुभाष जी का है, देबू का है, हमारे पूरे जितने कर्मी हैं सबका वादा है। हम लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आजाद जी, इससे पहले जो सांसद थे दुर्गापुर बर्धमान का, उन्होंने अगर किसी को यहाँ से उच्छेद किया गया तो बुलडोजर के सामने पहले वो बैठेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखें कि डीवीसी डीटीपीएस पावर प्लांट के लिए उच्छेद अभियान चल रहा है। क्या लग रहा है, न्यौता दिया गया था वो? आपको चिट्ठी दिखा दी हमने। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, वैसे अनेकों आदेश है जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है ये बुलडोजर अब चलाने की नौबत नहीं आएगी। बुलडोजर चलाएंगे तो इनको हम कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट में ले जाएंगे फिर कहीं इनको समस्या ना पड़े। हम उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम केवल इतना चाहते हैं आप काम कीजिए, हमसे आपको कुछ मदद चाहिए, हमारी सरकार से चाहिए, मंत्री बैठे हैं, दीदी आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप गरीबों को तंग मत करें। जितना सपोर्ट चाहिए होगा, दीदी खुद बोल के गई मेरे कार्यक्रम में कि हम लोग यहाँ से लेके दुर्गापुर से लेके रानीगंज, दुर्गापुर से लेके और कहाँ तक बताएंगे दीदी कि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया खोल रहे हैं। आप सोचिए उससे कितना अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी, कितना अधिक लोगों का काम आगे बढ़ेगा। तो जब वो दीदी कर रही है तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं हो। जी, ये डीवीसी का चेयरमैन इलेक्शन से जस्ट पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बताया था कि हम लोग रिहेबिलिटेशन नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री चाहिए, पहले रिहेबिलिटेशन। मुद्दा कहाँ तक जाएगा? देखिए, उनके कहने या ना कहने से नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह पश्चिम बंगाल का नोटिफिकेशन है, पश्चिम बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन, ममता बंदोपाध्याय का नोटिफिकेशन है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना करेंगे क्या? कहां है वो सुप्रीम कोर्ट का? दिखाओ जो लेटेस्ट वाला था महाराष्ट्र वाला।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं, मेरे नहीं है। देश के कानून में रिहैबिलिटेशन का लिखा हुआ है। तो क्या डीवीसी का चेयरमैन देश के कानून से ऊपर है? बोले एक बार, फिर हम उसको देखते हैं। डीवीसी के चेयरमैन को जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो आदमी पढ़ा लिखा हो, जो चेयरमैन है डीवीसी का, वही यह बातें करता है, यह उचित नहीं लगता। अगर उसको नहीं मालूम है तो हमको बुला ले, हम उसको ज्ञान दे देंगे। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट का, मेरा नहीं है। और ये हम जब से विधायक थे तब से हमने 70,333 लोगों को दिल्ली में स्थान दिलवाया। ये देखिए, चाणक्यपुरी क्षेत्र में था, जहां विदेशों के एम्बेसी हैं, हाई कमीशन है, वहां पर जो जमीनें थी उसका हमने लोगों को जगह दिलवाया। बीएसएनएल का जो जनपद पर झुग्गी था उसका लोगों को हमने दिलवाया। वेस्टर्न कोर्ट, जहां पर एमपी लोग आकर ठहरते हैं, जहां हम लोग जाकर ठहरेंगे जब तक घर नहीं मिलेगा, वहां पर के लोगों को हमने दिलवाया। उसके सामने ही बीएसएनएल का बिल्डिंग बना, वहां पर लोग थे, उनको दिलाया। तो इनको भी दिलवाएंगे। डीवीसी के चेयरमैन रोक नहीं सकते। उनको अगर नहीं ज्ञान है तो हम ज्ञान उनको देने के लिए तैयार हैं, और लोगों को ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा हम चेयरमैन को कहेंगे। आप लोग भी जाकर उनसे बात कर लीजिए। देखिए, हम आपको, ये लेटेस्ट केस है, इसके जैसा दर्जनों केस है सुप्रीम कोर्ट में, दर्जनों, हाई कोर्ट में दर्जनों, सैकड़ों केस है। ये केस है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिविल एपेलेंट जुरिस्डिक्शन, सिविल अपील नंबर 1359 ऑफ 2023, लेटेस्ट 2023 का है। यह है संयुक्त संघर्ष समिति एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और यह है जजमेंट। तो डीवीसी चेयरमैन को आप प्लीज कहिएगा, मेरे तो हमसे उम्र में छोटे ही होंगे, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, कि ऐसा कुछ ना करें कि हाथ में हथकड़ी लग जाए। उनको अगर चाहिए होगा तो हम उनको, अगर सरकार से मदद चाहिए तो प्रदीप दा हैं, ममता दीदी से हम लोग बात कर सकते हैं, और कुछ होगा तो है, गरीबों को मत उजाड़िएगा, ये आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। कुछ दिनों से डीपीएस में अनशन पे बैठे हुए हैं, पिछली बार संसद में मुद्दा उठाया था, ये पुनर्वासन को लेकर के स्टेट को और सेंट्रल को मिलकर एक नीति बनानी चाहिए। हमारा तो नीति है स्टेट का, ये नीति बना। उसके बाद ये हुआ, क्या प्रोजेक्ट चला जाएगा, बात क्या करेगा? सुनिए, एक मेरी बात बताइए। एमपी साहब ने कहा, एमपी साहब ने आगे क्या किया? इसमें कमेटी की क्या आवश्यकता है स्टेट और सेंटर के कोऑर्डिनेशन की? 10 साल से तो सेंटर में सरकार है, अभी ये सरकार कितने दिन चलेगी किसी को मालूम नहीं है। ये तीसरी बार जो सरकार बनी है, टूटी फूटी लंगड़ी लूली सरकार है, ये कब तक चलेगी किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि मालूम नहीं तेलुगु देशम पार्टी को, चंद्रबाबू नायडू को, और मालूम नहीं नीतीश कुमार को, कि पता हो कि आप सो रहे हैं और शरद पवार की तरह और शिवसेना की तरह आपकी पार्टी सब खत्म हो गई। इसलिए जो है, हमको कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता नहीं। जो कानून है देश का, जो स्थापित हो चुका है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हमें खेद है कि यहाँ के सांसद जो हमसे पहले, ये जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि ये सारे केस केंद्र सरकार से संबंधित हैं। बोला 8 दिन से वो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, 5 लोग अस्वस्थ हैं, तो क्या आप लोग वो अभी सुस्त हैं। अच्छा, काल उनको रिलीज, ठीक है सर, वो मेरा अस्वस्थ हो गए थे, उसी वास्ते तो ये क्या इतना आप लोग चिंतित वहाँ है। जाएंगे? हमारा कर्मी जाएगा, हमको बुलावा आया हुआ है इसलिए हमको जाना पड़ेगा कलकत्ता, लेकिन हमारे कर्मी जाएंगे, उनको चिट्ठी दिखाएंगे और बताएंगे और आश्वस्त करेंगे कि जो वादा हमने किया। आप बताइए, कितनी बार डीएसपी तोड़ने आए, तृणमूल के लोग नहीं खड़े होते थे क्या? आप लोगों को तो मालूम है। कहां था आलूवालिया? कौन खड़ा होता था? तृणमूल के लोग खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी नेत्री कि सरकार का ये आदेश है कि आप नहीं हटा सकते, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप नहीं हटा सकते। तो इसको लेकर के हम कार्य पर लगे हैं। हमारे कोई ना कोई यहाँ से कर्मी जाएंगे, चिट्ठी और हमारा जो प्रेस सारा कुछ हुआ है वो दिखाएंगे। वो लोग, कोई नहीं आ सकता। अगर बुलडोजर लेकर के आए, आप पूछिएगा चेयरमैन से कि आप उनको बोलिएगा कि ये है जजमेंट, वो लेके जाए बुलडोजर, हटाने का कोशिश करें, उनके ऊपर हथकड़ी लग जाएगा। इसलिए मेरे वो छोटे भाई हैं, उनको यही हम कहेंगे कि ऐसा मत करिएगा। कुछ आपके पास काफी जगह है अंदर, आप उसके अंदर स्थापित कीजिए, 400 का 800 कीजिए। पहले का एमपी नहीं किया जो करना। देखिए, आपके सामने है, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? आप 5 साल तक उनको देखे हैं। उनका जवाब तो ये नहीं देंगे। लेकर भी ऐसा समस्या है सर। हाँ, सुनिए, DSP
वहां भी होगा ना, ये शुरुआत तो है। ये अभी अभी देखिए आगे ये होती है, चूर ट्रेलर चूर है, के ट्रेलर सिनेमा देखते हैं ना, तो सिनेमा का पहले आता है 50 मिनट का ट्रेलर, तो ये ट्रेलर अभी आपको दिखाया डीवीसी। अभी आप हमको चिन्हा नहीं है, ये लोग चिन्हेगा हमको। गरीब आदमी को तंग नहीं होने देंगे, शनि महाराज का लोग होता है, ना 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 ना, गरीब आदमी नहीं। कीर्ति जी, पहले तो आपको जीतने के लिए अभिनंदन बहुत धन्यवाद। सारे दुर्गापुर की तरफ से। बात यह है कि आप तो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के नाते दुर्गापुर में आप देखें कई बिग टूर्नामेंट होता है, लेकिन आपके पास दुर्गापुर वासी की एक उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का है वो ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, वो आपको मतलब सामने मैंने पेश किया। दूसरा बात और एक चीज़ है कि जो बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा है। नाउ यू आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री, तो ये क्वेश्चन आपके पास हमारा है कि जो बेरोजगारी है इसके लिए आपको क्वेश्चन करने का बहुत सारे मौका मिलेंगे। आपका कुछ प्लान है ये दोनों क्वेश्चन का? बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स जहां तक है, हम तो खिलाड़ी आदमी हैं। खिलाड़ी का ना जात होता है ना धर्म होता है, वो अपनी टीम का होता है। हम अपने भारतीय टीम के थे, 1983 में विश्व कप जीते, तो भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए जीते। तो अपना जौहर दिखाना और टीम को जिताना हमारा काम है, तो अवश्य खिलाड़ियों के लोग, हम तो खुद खेलेंगे क्रिकेट, हम तो 36 साल का, उल्टा मत समझिएगा हम। तो एक चीज वो रहेगा। दूसरा, हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार के बड़े बड़े संदर्भ, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो बंद पड़ा हुआ है। एमएएमसी का इतना बड़ा जमीन है, उसका क्या करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डीएसपी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे हैं। एक है फेरो करके है, जिसको कि बंद करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, जिसका कि स्क्रैप, जिससे स्क्रैप खरीदते हैं ये लोग, उसका 35 से 40 करोड़ रुपया सालाना फायदा है। उसको भी मोदी प्राइवेटाइज करके प्राइवेट लोगों से खरीदवाना चाह रहे हैं, तो उसमें सोचिए कितने गड़बड़ होगी। तो हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। हम दुर्गापुर स्टील प्लांट के मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे। ड्रेजिंग के लिए अनेकों बार दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में अनेकों बार कमेटी आई, देखी गई, उन्होंने मेरे ख्याल 9-10 बार आए, लेकिन उसमें नहीं हुआ। उसकी लड़ाई लड़ेंगे। है तो मोदी, अब मोदी तो भगवान के अंश हैं, उनकी माँ तो है नहीं, वो भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश 6 राउंड हार रहे थे, तो अब वो देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। हमको जो लड़ाई लड़ना होगा वो हम लड़ेंगे। हमको खुशी है कि वो मजबूर है, हमको खुशी है कि वो मजबूर है। कम से कम उसकी तानाशाही नहीं चलेगी, और उसमें हमको जो जो अपने क्षेत्र के लिए कराना होगा हम करें। कीर्ति सर, जी नमस्ते, शुक्रिया, आप जीते। अरे एमपी जी मत बोलो, कीर्ति बोलो ना। बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तब देखा गया पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जितना म्युनिसिपल वार्ड है, म्युनिसिपल वार्ड में पीछे रहते हुए दिखाई दे रहा था। क्या आपको लग रहा है कि आपके अपने कार्यकर्ता इसमें अंतर्घात कर चुके हैं? जहां हम 75,000 से हारे थे, वहां हम पूर्वों में जीते हैं और पश्चिम में 12,000 से हारे हैं। यानी अगर हम पूर्वों का यहां एडजस्ट कर दें तो 8,000 से हारे हैं, तो 75,000 से हम 8,000 पर आ गए। तो ये मेरा कर्मी लड़ा है आपस में, या विश्वासघात किया है, या काम किया है जो 68,000 का लीड कम कर दिया? आप ये बताइए ना। 75,000 का था ना मेरा लॉस, 76,000 का लॉस था ना। 76,000 का लॉस वो लेकर के 68,000 आ गया। कैसे? तो कर्मी पीछे था क्या? 68,000 को दुगना कीजिए, 100 में अगर दोनों का 100 है, एक का 100 हटाइएगा, वो 99 हो जाएगा, हम 101 हो जाता है। तो 68,000 और 68,000 कितना हुआ? 68 और 68, 1,36,000 का फर्क है। उसी में जीते हैं, उसी से जीते हैं। और आप, और अगर लीड हमारा देखेंगे तो 1,36,000 में आप ऐड कर दीजिए 11,000 और, तो हम जीते हैं। तो ये हमारे कर्मियों का काम है। हार जीत तो होता ही है, सब पोलिंग स्टेशन पर जीत जाएंगे ऐसा होगा क्या? हर इनिंग में विराट कोहली सेंचुरी मार देगा ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। इसलिए मेरे कर्मी पर कोई दोष नहीं देगा। तो क्या তাহলে কি দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন কি রূপ কাটবে আপনি কি না, বলবেন? সেটা তো সরকার সিদ্ধান্ত নেবে, যে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিন তো হবেই, সম্ভবত তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু আমরা বিশ্লেষণ করছি যে প্রেক্ষাপট আলাদা থাকে, পার্লামেন্ট ইলেকশন এবং বিধানসভার ইলেকশন এবং পৌরসভার ইলেকশন, আবার পঞ্চায়েতের ইলেকশনে অন্য প্রেক্ষাপট থাকে। সেই জন্য আমরা সর্বক্ষেত্রেই যেখানে আমাদের লস হয় সেটা আমরা যথেষ্টভাবে নিরীক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি, এবং কী কারণে মানুষ আমাদের সমর্থন করেনি সেইটা জানার চেষ্টা করি। আমাদের কাছে
এইটে কোনো গুরুত্ব নয়। যে কথা বললেন আমাদের নবনির্বাচিত সাংসদ, যথার্থ যে আমরা 68,000-এর মতন আমাদের যে লস ছিল মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায়, সেটা আমরা কমাতে পেরেছি। আমরা গ্রাম অঞ্চলে বহু জায়গায় কম যেখানে ছিল আমাদের সেখানে ছাপিয়ে গেছি। তো এইভাবে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, মানুষের সমর্থন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা জয় করার চেষ্টা করব। সেখানে যদি আমরা নির্ণয়টা করতে পারি যে কী কারণে তারা আমাদের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন, তাহলে আমাদের পক্ষে কাজটা সহজ হবে। আমরা সেই কাজে আপাতত লিপ্ত আছি। অতএব যখনই নির্বাচন হোক আমাদের প্রস্তুতি থাকবে এই নিয়ে যে মানুষের মন যাতে আমরা জয় করতে পারি। এখন একটা ফলাফল বেরিয়েছে, আমরা কাল থেকে তার বিশ্লেষণ করছি। আমাদের সহকর্মীরা যারা যেখানে হেরেছেন বা জিতেছেন, তাদের বিশেষ করে যেখানে আমরা হেরেছি সেখানে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমাদের সাংসদও ছিলেন কালকে সন্ধ্যেবেলায় সেই আলোচনায়। হ্যাঁ, আমরা খুব একটা বেশি এইসব নিয়ে প্রচারে আসি না, কে কি দায়িত্বে আছে সেরকমও যেমন বলি না, সেরকম আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কাজ করা। সেই কাজের প্রথম পদক্ষেপ এত তাড়াতাড়ি, ওই যে বললাম এখনো অভিনন্দনের পালা শেষ হয়নি, কিন্তু আমাদের সাংসদ গত 3 দিন ধরে তিনি বলছেন যে আমার কি করণীয়। এই জন্যই বললেন যে 5 জন অসুস্থ হয়েছিল, 6 জন বললেন, 4 জন হাসপাতালে গেছিলেন, তাদের নাম, তাদের কবে ভর্তি হয়েছেন, কি চিকিৎসা হয়েছে, কালকে তারা রিলিজড হয়েছেন, এসব তথ্য আমাদের কাছে আছে। কেন? কারণ সাংসদ নিজে এই ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন, এবং কালকেই রাত্রিরে চিঠিটা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, চিঠিটা গেছে। তখনই আমরা স্থির করলাম যে এই যে ওনার ব্যস্ততা, আমরা যেমন বিশ্লেষণ বলি যে আমরা প্রচারে আনি না, আমাদের কিভাবে আমরা সেটাকে ওভারকাম করব সেটা আমরা প্রচারে আনি না, কিন্তু কাজের জন্য, মানুষের কাজের জন্য যে প্রচেষ্টা, সেটা আমার মনে হলো যে আপনাদের সকলের কাছে জানানো দরকার। কারণ যে কথা বারবার আপনাদের মুখে আসছিল যে প্রাক্তন যিনি ছিলেন, যাকে আপনারা এখানের এই লোক আপনারাও প্রাক্তন করে দিয়েছেন তাকে, তার সঙ্গে যে তুলনা করছেন, সেটা আমারও আগ্রহ ছিল যে মানুষ দেখুক যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আর যারা বাংলা বিরোধী তাদের সাংসদ যদি যেভাবে কাজ করেন আর আমাদের সাংসদ কীভাবে কাজ করেন, সেই তারতম্যটা সাধারণ মানুষের বোঝা দরকার। এই আত্মবিশ্লেষণে কি যে সমস্ত কাউন্সিলররা হেরে গেছে যেসব ওয়ার্ডে, তাদেরকে কি আবার টিকিট দেওয়ার কথা ভাবছেন? না, এইসব নিয়ে এখন दामोदर वैली वाला, आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि दामोदर वैली का ये आवश्यक है जो लोग को हो रहा है, कम से कम इससे और लोगों को भी यह संवाद जाएगा कि हम लोग गरीबों को विस्थापित नहीं होने देंगे। और आपको भी हम चाहेंगे कि आप लोग भी जा करके अगर वहाँ पर मिलेंगे तो कृपया कहिएगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम लोग समाज सेवा में हैं, लेकिन इंसान हैं और इंसान इंसान की मदद करता है, इसलिए आप लोग भी उनको जा करके कहिएगा। हम तो जाएंगे, हमारे कर्मी चले जाएंगे, हम कलकत्ता से वापस आएंगे तो उन लोगों से मिलेंगे। तो हमारा रहेगा कि आप लोग भी जाएं और उनको कहें कि वो अस्वस्थ रहें। कीर्ति आजाद खड़ा है, खाली खोखला वादा नहीं करता है, हम आलू वालिया नहीं हैं, हम कीर्ति आजाद हैं। हम दार्जिलिंग से भाग करके बर्धमान, दुर्गापुर यहाँ से भाग के आसनसोल वाले आदमी नहीं है। एक जगह से 3 बार जीते हैं, काम किए तभी जीते थे, और यहाँ पर भी हम मरते दम तक रहना चाहते हैं। आप लोग का आशीर्वाद मिलना चाहिए, ईमानदारी से, सफाई से, सच्चाई से आप लोग के बीच में काम करते रहेंगे। प्रदीप दा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, आपका सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग के साथ मिलेगा, तो हम लोग आगे बढ़ बढ़ करके काम करते रहेंगे, लोगों के लिए अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। अच्छा जी, एक वैलिड क्वेश्चन है जो ममता बनर्जी ने कहा था क्षमता में आने के बाद 2011 में वाटर टैक्स को रिमूव कर देगा हर म्यूनिसिपैलिटी का, लेकिन एकमात्र दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर वाटर टैक्स लगता है। डीबीसी वाटर के लिए चार्जेस लेता है दुर्गापुर कॉर्पोरेशन से। इससे पहले एमपी किसी और है कॉर्पोरेशन, एक बार कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो जाएगा, फिर दीदी जो बात कही है उस बात को पूरा किया जाएगा। প্রদীপ বাবু, আপনি তো এখানকার এই শহরের বিধায়ক, হ্যাঁ, সিটি সেন্টারের হাল দেখেছেন আপনি? अभी restricted to what नहीं, तो ये बहुत আজকের প্রতিটা রাস্তার উপরে দোকান, প্রতিটা বাড়ি রেসিডেন্সিয়াল গুলোকে কমার্শিয়াল করে দিচ্ছে,
পয়সা নিয়ে হোক যেমন করে দিচ্ছে, পার্কিং এর জায়গা নেই, রাস্তার উপরে গাড়ি পার্ক করে দিচ্ছে, লোক যাতায়াত করতে পারছে না। এটা নিয়ে আমরা আরেকদিন আলোচনায় বসবো, যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর इसको এডিডি এর बहुत ওনারাও serious- থাকবেন। बहुत serious मामला है। এটা এটা আজকের এই সাবজেক্টটা ডিফিউজ না করে আপনারা নিশ্চয়ই जी, প্রস্তাব एक দেন। तरफ आप बोले कि डीएसपी का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है और विस्थापित तो नहीं होने देंगे बस्तियों को, तो फिर क्या फॉर्मूला निकालेंगे आप पार्लियामेंट में जाके? एक ही है, 4000 एकड़ जमीन दिया गया है उनको, वो आज तक कितना जमीन यूज किए हैं? जहां उनका जरूरत है वो तो क्या कह रहे हैं साहब, हमारे एमपी साहब क्या कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन दीजिए उनको रिहेबिलिटेट कीजिए। इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन बहुत सारे दिए हुए हैं, राज्य सरकार ने दे चुके हैं 50s में 4000 एकड़। इसी पॉइंट का एक सप्लीमेंट्री है सर, आपने बोला रिहेबिलिटेशन के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट प्रीवियसली एक मुहिम चलाया था पिछले 10-15 साल पहले कि यहाँ जितने खटाल था सारा खटाल को उठा के उसने जगह दे दिया था कि आप लोग शहर से दूर हो जाओ। खटाल तो बन गया मगर यहाँ का खटाल उठा नहीं, ये बस्ती भी रह गया, वहाँ भी बस्ती। देखिए तो इसके ऊपर कैसे आप लोग, ये तो हमारा कहने का चीज है नहीं, ये पूरा डीएसपी का मुद्दा है। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे एमपी साहब ने कह रहे थे सुबह से कि आप जो सेटल्ड हो चुके हैं वहाँ रह रहे हैं बहुत सालों से, उनको आप उखाड़ नहीं सकते हैं विदाउट मेकिंग विकल्प अरेंजमेंट। यही तो है, उसी में रहने दीजिए। अब विकल्प अरेंजमेंट करने के बाद में ये लोग बैठे रहें, ये डीएसपी का प्रॉब्लम है, वो नहीं उसको खाली कराया, ऑल्टरनेटिव जगह में सेटल करा दिया, ये प्रॉब्लम उनका है। इसका माने ये नहीं कि आज वो उखाड़ सकते हैं विदाउट गिविंग ऑल्टरनेटिव। ठीक है।